Good morning, dear students. In the last lecture, we had studied about socialization. That what is socialization? That is science of society, we can say. So we discussed about socialization, and in the socialization, we mostly have, as far as we are concerned, we have students and we have teachers. So there can be a student leadership. There can be a, we can say, teacher leadership. So we will today discuss about these two types of leadership. One is about the students and one is about the teachers. So before we go to our chapter, the topic we can say, I will have your attendance as usual. One is Ayushi Singta, Akanksha Sharma, Ankita Changra, Kalpana Sharma, Mokshika, Pravjot, Shakshi, Sapna, Shariba, Shrestha Rana, Sabika Ali, Swati Bhardwaj, Amarpreet, हिमांशु सैनी, मनीष कुमार, नितेश दुबे, सौरभ राणा, सुशांत, and two students of commerce, Lakhan and Nilesh, and a new student, Vivek Sharma. Out of these, Ayushi Singta did not give the attendance. Kalpana Sharma, she gave the attendance. Mokshika, she did not give the attendance. Sapna also, she is not responding at all. I don't know whether she is present in IT or not, because she has not taken my permission to change the subject. Without the permission of the principal, she cannot change the subject, and there is a time limit for that. After that, I will not allow her. Shariba, I don't know where is she. She is not coming back to the classes so far. Then about Himanshu Sani, he has not responded this time. Otherwise, he was regular. Manish Kumar was also being regular, but now he has again stopped. Nitesh Dubey has stopped. Saurabh Rana, he has also stopped. Sushant, he is also not responding this time. Lakhan, he is absent from the very beginning. I don't know where is he. Nilesh is okay. Vivek Sharma, the new student, he has also not responded so far. So kindly respond, and now take your 1 minute, collect your notebook and pencil, pen, etc., whatever you want. So your 1 minute starts now. Then we will move on to our topic. I think you must have collected your notebooks and pen, etc., by now. So we will start with the topic of leadership, that is development of leadership qualities and group dynamics. Development of leadership qualities and group dynamics. Leadership. Now, what is leadership? Now, leadership is also a social quality because the chapter is of socialization. It is a
social quality, it is found in many age groups, all age groups we can say, in sex also, because certain women they are also leaders, sometimes man is also leader. In various races, say there is some Hindu Sabha, or say some Brahman Sabha, Rajput Sabha, Mohammedan, some Muslim Sabha, and so on. And cultural activities are also there. In cultural activities also there is some leader. Folk dance leader is there. One act play leader is also there. So in all these, we can say different age groups and different sex and races, there is a leader. So leader is generally is that which direct others. लीडर इज वन हु डायरेक्ट अदर्स, जो दूसरों को डायरेक्शन देता हो काम करने के लिए, वो लीडर हो जाता है. लीडर कैन बी बॉर्न लीडर, ही कैन बी मेड लीडर. जैसा कि बॉर्न लीडर का मतलब पैदा होते ही लीडर, बाय बर्थ. वन हैज लीडरशिप क्वालिटीज बाय बर्थ, मे बी ड्यू टू द बर्थ इन ए फैमिली ऑफ लीडर्स. फैमिली ऑफ लीडर्स में ही पैदा हुआ है, तो नेचुरली लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं उसके अंदर पहले ही, बाय बर्थ, बॉर्न लीडर. जैसे नेहरू फैमिली है, तो एक के बाद एक लीडर्स आते रहे उनकी फैमिली में. देन वी हैव मेड लीडर्स. मेड लीडर्स अपने एफर्ट्स के साथ बनते हैं, जो वन हु हैज लीडरशिप क्वालिटीज बाय, जो बर्थ होगा तो बॉर्न लीडर होगा, बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क होगा तो वो मेड लीडर होगा, बाय ओन एफर्ट्स होगा, अपने एफर्ट्स करेगा और लीडरशिप क्वालिटीज को लाएगा अपने में. दे आर कॉल्ड मेड लीडर्स. Then certain writers have also given definition about leadership. One is your R.M. Snodgill. What R.M. Snodgill says, a leadership is a process. The leadership क्या है? It is a process है of influencing the activities of an organized group. किसी भी organized group की activities को जो influence करना है, प्रभावित करना है, that is leadership. एक ऐसी process है ये. Leadership is a process of influencing the activities of an organization. कोई organized group है, उसकी organization क्या क्या लीजिए आप, उसको कंट्रोल करना, influence करना, that is called leadership group for some goal achievement. और वो जो बनी हुई है लीडरशिप की एजेंसी, जिसके लिए एक्टिविटीज हो रही हैं, मस्ट बी फॉर सम गोल अचीवमेंट. कोई अचीवमेंट करने के लिए होती है वो, मे बी सोशल सर्विस हो, मे बी सम कल्चरल एक्टिविटीज हो, मे बी एनीथिंग. सो उसके लिए जो लीडरशिप है, दैट इज ए प्रोसेस. R.M. Snodgill said. देन PM जोसेफ. जोसेफ आपके मैथ टीचर का नाम भी जोसेफ है, he is also Joseph. So PM जोसेफ, what he says, मैंने कहा था आपको जो डेफिनेशंस हैं, दे शुड बी लर्नड एज दे आर. जैसी हैं वैसी ही याद करनी पड़ती हैं, क्यों दीज आर द वर्ड्स ऑफ ए राइटर. आई कैन नॉट चेंज देयर स्टेटमेंट. सो लीडरशिप इज द क्वालिटी. कौन सी क्वालिटी है? विच एनेबल्स ए पर्सन, जो पर्सन को योग्य बनाती है, टू टेक इनिशिएटिव, ताकि वो इनिशिएटिव ले. इनिशिएटिव का मतलब है उसको गाइड करने के लिए कोई भी एक्शन ले, एंड गाइड अदर्स, और दूसरों को गाइड करे, इन परफॉर्मिंग सम रिक्वायर्ड टास्क. कोई रिक्वायर्ड टास्क है, जैसे मैंने कहा था सोशल सर्विस है, तो सोशल सर्विस में कोई टास्क करना है, तो उसको टास्क को परफॉर्म करने के लिए इनिशिएटिव ले और गाइड करे अपने ग्रुप को, दैट इज लीडरशिप. सो लीडरशिप इज अ क्वालिटी विच एनेबल्स ए पर्सन, पर्सन को एनेबल करती है, योग्य बनाती है, टू टेक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव बना करने के लिए, एंड गाइड अदर, दूसरों को गाइड करने के लिए, इन परफॉर्मिंग सम रिक्वायर्ड टास्क. जो रिक्वायर्ड टास्क है, ये सोशल सर्विस है तो सोशल सर्विस का रिक्वायर्ड टास्क है. कोई रिलीजियस
कोई एक्टिविटी है तो उसमें क्या रिक्वायर्ड टास्क है, और कोई ड्रामेटिक एक्टिविटी है तो ड्रामा कैसे करना है, क्या करना है, हिस्टोरिकल लेना है, कौन सा लेना है, इट इज टू बी डिसाइडेड, इनिशिएट करना है उसको और गाइड करना फिर औरों को, दूसरों को। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएम जोसेफ। जोसेफ का आपने नाम आपको याद रह ही जाएगा, क्योंकि जोसेफ इज अवर मैथ्स टीचर। सो थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ए गुड लीडर? एक अच्छे लीडर के लिए तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। वन इज गुड लीडरशिप, एक तो उसकी लीडरशिप अच्छी हो। गुड फॉलोअर्स, फॉलोअर भी अच्छे हों उसके पास। ये ना हो कि मेरी लीडरशिप तो बहुत अच्छी है, सुनने वाला मुझे कोई नहीं है, मैं एक धार्मिक गुरु हूँ और मुझे सुन कोई नहीं रहा, तो कहाँ रहेगी मेरी धार्मिक की जो प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। सो गुड लीडरशिप, गुड फॉलोअर एंड ए कॉमन पर्पस, और पर्पस कॉमन होना चाहिए, सबके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। सो थ्री थिंग्स: गुड लीडरशिप, गुड फॉलोअर एंड कॉमन पर्पस। नाउ टाइप्स ऑफ लीडर, as I told you, the leader can be male, he or she can be female, he can be religious leader, he can be sports leader, or he can be political leader, whatever it is. So types of leaders, two types of leaders are there. One are called professional leaders and the other are called democratic leaders. Professional and democratic. What is professional and what is democratic, we will discuss now. Professional leader, first of all. A professional leader क्या है? जो कि अपने प्रोफेशन को चलाता है लीडरशिप में, अपनी ऐसी लीडरशिप डेवलप करता है, ऐसी लीडर क्योंकि उसके लिए कोई ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उसको प्रोफेशन को संभालने के लिए। जैसे टीचर है तो उसको बीएड करनी पड़ेगी, जेबीटी करनी पड़ेगी, शास्त्री, एलटी, ओटी, कुछ भी करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई मैनेजर है तो उसको एमबीए करनी पड़ेगी, कोई और ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिससे उसकी जो मैनेजरियल जो वी कैन से एक्टिविटीज पूरी हो सके, कर सके पूरी तरह से उनको। सो प्रोफेशनल लीडर इज दैट लीडर, वी कैन से ही इज वन हु अर्न्स द लीडरशिप क्वालिटीज। कौन सी क्वालिटीज? डिजायरेबल फॉर हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के लिए चाहिए, उसको डिजायरेबल होनी चाहिए, सो दैट ही बिकम्स ए गुड प्रोफेशनल, ताकि वो अच्छा एक प्रोफेशनल बन जाए। सो दीज आर प्रोफेशनल लीडर्स: टीचर्स, ऑफिसर, मैनेजर, वी कैन से एडमिनिस्ट्रेटर। अगर एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है तो इट मीन्स ही हैज डन ए प्रॉपर ट्रेनिंग। आईएएस को भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मसूरी में एक आईएएस ट्रेनिंग सेंटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईएएस पास करो, देन ट्रेनिंग करो। डॉक्टर को भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीबीएस करेगा, उसके बाद हाउस जॉब करेगा, ओनली देन ही कैन सिट बिफोर ए पेशेंट। एंड द सेकंड टाइप ऑफ लीडरशिप इज डेमोक्रेटिक लीडर्स। Democratic again of two types: mature leaders and immature leaders. Mature leaders, जो political leaders हैं आपके, they are mature leaders. एमएलए है, एमपी है, आपका पंचायत प्रधान है, इलेक्टेड होते हैं मोस्टली वो, तो दे आर मेच्योर लीडर्स, दे आर पॉलिटिकल लीडर्स। देन वी हैव इमेच्योर लीडर्स। इमेच्योर लीडर होते हैं, जैसे स्टूडेंट लीडर है, मॉनिटर है क्लास का, तो वो इमेच्योर लीडर है, क्योंकि लीडर तो बन गया बट विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी मेच्योरिटी। ही इज वॉलंटियर, ही इज वॉलंटियर, वी कैन से टाइप ऑफ वॉलंटियर। सो सर्विस इज वॉलंटियर सर्विस, वॉलंटरी सर्विस, ही इज परफॉर्मिंग वॉलंटरी सर्विस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट लीडर है आपका, कोई ग्रुप लीडर है, ग्रुप बन गया कोई, मान लीजिए कोई आपने सफाई करनी है स्कूल की, उसके लिए कोई ग्रुप बनाया, दैट इज ग्रुप लीडर, उसका एक इंचार्ज बन गया। मॉनिटर, क्लास मॉनिटर हो सकता है, इट कैन बी, वी कैन से एकेडमिक लीडर कह सकते हैं उसको, क्लास का एकेडमिक लीडर। कल्चरल लीडर हो सकता है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज करनी है, उसके लिए ग्रुप बनना है, उसके लिए कल्चरल लीडर होगा। स्टेज लीडर, कोई वन एक्ट प्ले करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए लीडर बन जाएगा, दैट इज स्टेज लीडर। सो
these are the two types of leaders: mature leaders and immature leaders, and both are democratic leaders, and they were professional leaders. Now, I told you two types of persons are there in society as far as we are concerned, education is concerned. One are students, and the other are teachers, and third can be parents. Parents have also found a we can say SMC, School Management Committee, or PTA. We can say Parent Teacher Association. They are made. But as far as school is concerned, only school part, then we have a student leadership, and then we have a teacher leadership. So today we will discuss only student leadership. Student leadership, the student will be the leader, maybe the class leader, maybe the cultural leader, maybe the stage leader, maybe of any activity in the school, maybe NSS activity, maybe NCC, maybe Scout and Guide, whatever activity is there in the school, for that we will make a leader, student leader. So the first value of a student leader is opportunity to improve, अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, उसको इम्प्रूव करने का एक अवसर मिल जाता है उस लीडर को, उस स्टूडेंट को. तो स्टूडेंट लीडरशिप क्या करता है? इट गिव्स अस गिव्स हिम द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, उसको इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी देता है. अपनी कमांड, हिज कमांड, क्लास कंट्रोल करने की अपॉर्चुनिटी देता है उसको, सेल्फ डिसिप्लिन में रहने की अपॉर्चुनिटी देता है, कोऑर्डिनेशन बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स इन द क्लास. So all these things, they are there. They give the opportunity to improve, for improvement of the student leader. Second is develops social qualities. Social qualities भी develop हो जाती हैं ऐसे बच्चे में. Social qualities कौन सी हो सकती हैं? Cooperation हो सकता है, we can आपस में mutual cooperation, we can say sympathy हो सकती है, sacrifice हो सकता है for others. The student leader develops all these social qualities while being a leader, student leader. Third is tolerance, develops the tolerance, quality of tolerance उसकी बढ़ जाती है. टॉलरेंस जो है वो क्या है? स्टूडेंट लीडरशिप में आ जाती है. प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस, क्वालिटी बढ़ जाती है. जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में व्हाट हैपेंस, कभी कभी डिफीट भी टॉलरेट करनी पड़ती है. कभी हो सकता है अननोइंगली एम्पायर जो है ही मे गिव सम रॉन्ग डिसीजन, but you have to agree because he is umpire. He may compensate later on, but at that time, at that moment of the spur, we can say, अगर कोई गलती हो गई है एम्पायर से अननोइंगली या नोइंगली, तो इट शुड बी टॉलरेटेड. हो सकता है कोई अपोजिट टीम का मेंबर ही कोई ऐसे रिमार्क्स कर दे आपके ऊपर, देन यू हैव टू टॉलरेट. इन क्रिकेट में आपने देखा होगा, बॉलर कई बार बैट्समैन को कुछ ना कुछ बोल देता है, या बैट्समैन बॉलर को कुछ ना कुछ बोल देता है, तो उसके लिए एक पनिशमेंट है. जो अंपायर है वो पनिशमेंट देता है. बट प्लेयर्स दे शुड नॉट fight with each other, they should tolerate, because it happens sometimes without any intention, but it happens. Then we have sense of duty. ड्यूटी की सेंस आ जाती है हमारे में. जो भी लीडर होगा, स्टूडेंट लीडर होगा, तो लीडरशिप विल डेवलप अ सेंस ऑफ ड्यूटी इन दैट पर्सन. द प्लेयर जो है वो, या स्टूडेंट लीडर है, दैट बिकम्स पंक्चुअल, दैट बिकम्स रेगुलर. कभी मीटिंग करनी है तो रेगुलर होगा, पंक्चुअल होगा. रूल्स फॉलो करने हैं तो ही विल फॉलो द रूल्स. ही विल फील ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस आ जाएगी. So he sense of responsibility will be there, and the sense of, that is sense of duty, तो ड्यूटी की सेंस उसमें आ जाती है. Then we can say assist the teacher, very important. क्लासरूम में डिसिप्लिन बनाने के लिए क्लास मॉनिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. टीचर इज बिजी in preparing the lesson, in checking the notebooks, or doing some official work. So he may not be able to attend the class every time. So what happens? The leader, the student leader, will make him enable
to speak or to, we can say, spend more time for teaching and for the important functions and duties. So in a way, what will happen? He will assist the teacher in classroom discipline. Then development of harmony. हारमोनी जो होती है वो तालमेल होता है एक तरह से. मान लीजिए आप टूर्नामेंट में खेलने चले गए बाहर, आउट ऑफ योर स्टेट और आउट ऑफ योर we can say district, or even sometimes you may go out of country also. So there you will see that other people are speaking some other language. Their living style is different. Their behavior is of some other type. Food habits are also changed. They may be eating something else which you never ate. So when you go to different places, so what happens? These things, they are found in games and sports. What happens? There is change in these things, lifestyle, living style, behavior, food habits, dresses also we can say. And that particular place, you will have to face all these difficulties. So you will have to develop harmony with these things. In this way, a feeling of friendship and harmony is spread. Friendship and harmony is spread in this way. Then the seventh is change of behavior. आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है गेम्स और स्पोर्ट्स में आकर. बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट लीडर चेंजेस. Here he adjusts with all the teammates and even with the members of other teams. दूसरी टीम के साथ एडजस्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि टूर्नामेंट है, हो सकता है 10-15 टीम्स वहां पर हो, सो यू विल हैव टू टॉक विद ईच अदर. आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा. ये नहीं कि उनके साथ दुश्मनी बनाए रखो. दे आर नॉट योर एनिमीज, दे आर योर फ्रेंड्स. दे हैव आल्सो कम फॉर प्लेइंग and you are also gone for playing. So the leader will manage all these things with his teammates. The student leader changes his own behavior while dealing with others and also the behavior of his teammates. Then the eighth is group coherence. ग्रुप कोहेरेंस. कोहेरेंस आपको बताइए कि मिलना, मिलजुल करके रहना. ग्रुप में कोहेरेंस होनी चाहिए. टीम इवेंट्स में बहुत से प्लेयर इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं. और ट्रेवलिंग के समय भी बस में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं. हो सकता है आप हॉकी के प्लेयर हैं, लेकिन उसमें बास्केटबॉल का बच्चा भी हो सकता है, उसमें बैडमिंटन का बच्चा भी हो सकता है, एथलेटिक्स भी हो सकती है. सो एक ग्रुप लीडर को क्या करना है, वो टीम इवेंट्स के समय और उन ट्रेवलिंग के समय ग्रुप कोहेरेंस को बनाए रखना है. टीम इवेंट्स teaches us to work together in a group, we can say. A student leader will help all the students to remain united and will try to win the game, or he will manage the group, we can say, properly. Then the ninth point is inspiration. इंस्पिरेशन देना तो है ही है इम्पोर्टेंट, कि उन अपनी टीम मेंबर्स को और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको कैसे इंस्पायर करना है. ए गुड स्टूडेंट लीडर जो है विल प्रोवाइड इंस्पिरेशन टू हिज फेलो बीइंग्स बाय हिज गुड बिहेवियर एंड नेचर. देन वी हैव बेटर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट बेटर हो लाइफ में और गेम्स में भी. ए स्टूडेंट लीडर जो है ब्रिंग्स क्लोज रिलेशनशिप अमंग्स हिज क्लासमेट्स and say also with teachers. This way he will help in bringing better adjustment in the class. Then we have mode of selection of a training of a student leader. Mode of selection कैसे करनी है, एक लीडर के बनाना किसको है लीडर. वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल लीडर. हर बच्चा एक लीडर बन सकता है, लेकिन उसको एक अवसर देना पड़ेगा, उसकी लीडरशिप को अनफोल्ड करना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली हो जाएगी वो, इफ उसको हम लीडर बना देते हैं जब. तो एवरी चाइल्ड
इज ए पोटेंशियल लीडर वी कैन से, उसमें हमने कैसे कैसे सिलेक्ट करना है, लेट अस सी। एट प्राइमरी लेवल बाय रोटेशन, प्राइमरी लेवल के बच्चों को तो पता ही नहीं होता बेचारों को लीडर क्या है, तो बाय रोटेशन लीडर बना दिया। आज ये लीडर होगा, जब 7 डेज ये रहेगा, 7 डेज ये रहेगा, 7 डेज ये रहेगा, बाय रोटेशन। सेकेंडरी लेवल पर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स एंड को करिकुलर्स, को करिकुलर और एकेडमिक्स में क्या परफॉर्मेंस है किसी बच्चे की, उसको बच्चे को देखते हुए उसको हम लीडर बना सकते हैं एट हाई स्कूल लेवल वी कैन से, सेकेंडरी लेवल वी कैन से, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स। जो एकेडमिक्स में अच्छा हो, पढ़ाई में भी अच्छा हो, और गेम्स में भी अच्छा हो, कल्चरल एक्टिविटीज में भी अच्छा हो, ऐसे, और सोशल वर्कर भी हो, ऐसे स्टूडेंट को वी कैन मेक ए स्टूडेंट लीडर एट सेकेंडरी लेवल। एट सीनियर सेकेंडरी लेवल अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, नाउ दे नो, तो उसमें टीचर की गाइडेंस तो हो, अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर, इफ द पर्सन इज और स्टूडेंट इज स्मार्ट, उसकी स्मार्टनेस को देखना है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखना है, एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज को देखना है, ऐसे स्टूडेंट को टीचर कैन मेक ए लीडर बाय ग्रुप वोटिंग। हो सकता है 2 बच्चे आ जाए उसमें, 3 भी हो सकते हैं, तो ग्रुप वोटिंग होगी, उसमें वोटिंग में जो जीत गया दैट विल बी द लीडर। अब लीडर बन गया तो उसको ट्रेनिंग कैसे देनी है, ट्रेनिंग बाय द टीचर, टीचर ने देनी है अबाउट हिज ड्यूटीज, ड्यूटीज बतानी है क्या क्या ड्यूटीज होंगी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एंड अथॉरिटी भी बतानी है उसको, ये नहीं कि वो राजा ही बन गया, कितनी अथॉरिटी है उसकी, क्या वो बच्चे का होमवर्क देखेगा, क्या टेस्ट भी चेक करेगा या नहीं करेगा, सो अथॉरिटी बतानी है उसको, व्हाट इज हिज अथॉरिटी, तो उसकी अथॉरिटी बना करके फिर उसको रिकॉग्नाइज करना है, ताकि दूसरों को पता लगे कि वो लीडर है। तो कैसे करना है रिकॉग्नाइज उसको, बाय से गिविंग सम कलर, उसके कहते हैं कलर लगा दिया, या कोट में उसको कोट में एक कलर उसको दे दिया ताकि कलर वो लगा ले, उसमें बेशक कोई वी कैन से मोटो हो लिखा हुआ उसके अंदर, बैज उसको दे दिया, कोई बैज लगा के रखे हो, सो दैट अदर्स में फील दैट ही इज अवर लीडर। हो सकता है शैशिस देने पड़े, शैशिस होता है वो कमर में यहाँ से यहाँ तक वो बांध लेते हैं, लिखा होता है लीडर, या लिखा होता है उस पर कई बार, अगर हैंडसम बॉय है तो हैंडसम बॉय, ठीक है, इसमें तो नहीं लिखना हैंडसम, लेकिन हमने कलर में उसको वी कैन से टाइप ऑफ शैशे, कमर बंद कहते हैं उसको, कमर बंद देते हैं, ताकि उसको मोटिवेशन होती रहे और रिकॉग्निशन भी रहे उसकी, और लोग उसको पहचान भी सकें, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग के साथ साथ ये उसकी पहचान के लिए, उसकी वी कैन से रिकॉग्निशन के लिए उसको दिया जाता है। देन वी कैन नो द क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट लीडर, स्टूडेंट लीडर की क्या क्वालिटीज हैं, यू कैन एलेबोरेट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। One is academically sound, he should be or she should be academically sound, with command over various subjects. She must be among the toppers, we can say. Good physique, फिजिक मैंने सेहत उसकी अच्छी हो, यानी मरियल को किसी को बना दिया, उसको कोई लगे ना कि वो जो है वो आपका लीडर है, तो उसकी गुड फिजिक, ही शुड हैव ए गुड फिजिक। ब्यूटीफुल होना चाहिए, लड़की है तो लड़का हो तो हैंडसम होना चाहिए, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ड्रेसअप स्मार्टली हो, ऐसे ना हो कि देखने में अच्छे ना लगे। थर्ड इज गुड मॉरल कैरेक्टर, उसका अच्छा होना चाहिए, झूठ ना बोलने वाला हो, बिहेवियर विद अदर्स अच्छा हो उसका, एग्जाम्पल हो बाकियों के लिए। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट, ही शुड बी इंटेलिजेंट एनफ, एंड क्रिएटिव होना चाहिए, शुड बी एबल टू हैंडल द ऑड सिचुएशंस, इंटेलिजेंट हो, कोई भी ऑड सिचुएशन आ जाए ड्यूरिंग गेम्स और इन स्कूल और इन क्लास, ही शुड बी इंटेलिजेंट एनफ टू हैंडल। सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में सेल्फ मैंने अपने आप डिसिप्लिन हो, उसमें ये ना हो कि टीचर नहीं है तो खुद भी शोर कर रहा है, तो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हुआ वो, किसी के कहने से डिसिप्लिन में ना आए, बट सेल्फ डिसिप्लिन हो, औरों को डिसिप्लिन में लाए। स्टूडेंट लीडर शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन, मीनिंग ही शुड बी रेगुलर, पंचुअल, adjusting nature, polite, having patience, and so many we can say. So he should be, we can say,
सेल्फ डिसिप्लिन। देन द नेक्स्ट इज विलिंगनेस टू इम्प्रूव। ये नहीं कि टिक गया एक जगह तो बन गया लीडर तो बन गया, नो, इम्प्रूवमेंट की विलिंगनेस भी हो उसमें, इम्प्रूव करने की, फर्दर इम्प्रूव करने की भी उसमें क्वालिटी हो। ही शी शुड बी विलिंग टू इम्प्रूव फर्दर एंड सॉल्व एनी प्रॉब्लम कमिंग हिज वे ऑन प्रायोरिटी बेसिस, उसको पहले सॉल्व करे हो। सो विलिंगनेस टू इम्प्रूव। देन इंस्पायर अदर्स, दूसरों को भी इंस्पायर करने वाला हो, अपने आप तो इंस्पायर हो ही रहा है, दूसरों को भी इंस्पायर करे। स्टूडेंट लीडर शुड बी कोऑपरेटिव, he should have team spirit, brotherhood he should have, and should inspire others or followers we can say, उसके जो फॉलोअर्स हैं या क्लासमेट्स हैं या स्कूल का लीडर है तो स्कूल में जितने बच्चे हैं उनका लिए अडॉप्ट ऑल दीज क्वालिटीज वो करे, देन ही कैन इंस्पायर अदर्स। अपनी क्वालिटी दिखाएगा तभी लोग इंस्पायर होते हैं, कहने से नहीं होते। अगर मैं अच्छी मेरे में क्वालिटीज हैं तो मेरी क्वालिटीज को देखकर दूसरे इंस्पायर हो जाएंगे, अदरवाइज कोई इंस्पायर नहीं होता, कहने से कोई नहीं। कोरेजियस, करेजियस एंड लॉजिकल। करेजियस मैंने साहसी होना चाहिए, साहस होना चाहिए सच कहने का, या अपनी बात रखने का साहस होना चाहिए प्रिंसिपल के आगे, टीचर के आगे। स्टूडेंट लीडर शुड बी फियरलेस, फियरलेस होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, एंड शुड हैव लॉजिकल थिंकिंग, सही सोच करके कहे, ऐसा ना हो कि जो मर्जी कह दे, करेजियस होना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट इज नाउ मास्टर ऑफ फिजिकल स्किल्स। जो फिजिकल स्किल्स हैं स्पोर्ट्स में काम आती हैं उसका मास्टर होना चाहिए। स्टूडेंट लीडर जो फिजिकल एजुकेशन का है पर्टिकुलरली शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एज वेल एज एक्सप्लेन फिजिकल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकता हो और एक्सप्लेन भी कर सकता हो अपने साथियों को। एबल टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता हो, अपने आइडियाज को बता सकता हो दूसरों को। स्टूडेंट लीडर शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड आइडियाज टू अदर्स इन एन इजी मैनर, आसानी से, ताकि समझ आ जाए किसी को। 11th इज इमेजिनेटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। इमेजिनेटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। इमेजिनेटिव का मतलब कि इमेजिन कर सके क्या होना है आगे। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। इमेजिनेटिव जो पावर है उसकी इट शुड बी क्वाइट गुड। फिर है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे आइडियाज के बारे में, ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में वो ध्यान दे सके जो है ही नहीं अभी, एडवांस में सोच रहे हैं उनके बारे में क्या होने जा रहा है। लीडर मस्ट हैव एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड शुड